Hey guys, this is another video lecture on calculus, the next part of differential calculus, the part on problem solving, and probably we will be having a discussion on the mechanism or the physical significance of differential calculus. So here we go, differential calculus. So for those who have joined the session late or who did not see the previous video lectures, differential calculus is a part of a much broader subject called as the calculus, and calculus is broadly classified into differential calculus and integral calculus. So we are at the moment learning differential calculus. Calculus as a whole is a mathematical tool जिसको कि हम लोग functions को analyze करने के लिए use करते हैं. So as far as function is concerned, at the moment you can simply understand that functions are nothing but simple relationship between variables. For example, y is equal to ax square plus bx plus c, or y is equal to sin x, or y is equal to e power x. These all are examples of functions, and these all relations indicate that y depends on x for its values. हम लोग अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे x रियल नंबर है और y भी रियल नंबर है, और क्योंकि यहाँ पर y x के ऊपर डिपेंड करता है तो हम लोग बोलते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x. सो इन कैलकुलस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वी अज्यूम दैट स्मॉल चेंजेस आर इंट्रोड्यूस्ड इन वन वेरिएबल and then we study the corresponding changes taking place in the other variable. So here we can assume that x is an independent variable because the values to x can be assigned independently, and y is called as dependent variable. क्यों बोलते हैं? क्योंकि y का values x के values के ऊपर depend करता है. So हम overall हम लोग क्या बोलेंगे, y is a function of x because y depends on x for its values. So guys, in calculus, in physics or in mathematics, small changes in variables are represented by symbol delta. हम लोग delta symbol को small changes के लिए use करते हैं. For example, if I write delta x, it means change in variable x which may be equal to some final value of x minus some initial values of x. If you change x, obviously there will be a change in the value of y. So if you substitute the value of x as xi, y will have some value, say yi. अगर आप x के वैल्यू को किसी फाइनल वैल्यू xf से रिप्लेस करते हो तो y का भी वैल्यू चेंज हो जाएगा, एंड सपोज दैट द वैल्यू ऑफ y इज yf. सो चेंज इन y इज फाइनल वैल्यू ऑफ y माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ y, और यहाँ पर जो चेंज इन वैल्यू ऑफ y है वो चेंज इन वैल्यू ऑफ x के ऊपर डिपेंड करता है. सो डेल्टा x एंड डेल्टा y आर नथिंग बट changes in x and y respectively. Delta x is change in x and delta y is the corresponding change in the value of variable y. So guys, before going into differential calculus, we will be learning another very important concept, the concept of a limit. Let us learn an expression. Now this expression is read as delta x tends to 0 or delta x approaches 0, and it has got a very special meaning. So when we say delta x tends to 0, it means first of all that delta x is not equal to 0. Second, that delta x is close to 0. So when we say that delta x is close to 0, we can assign to delta x values such as 0.1. You can assume that 0.1 is close to 0, or you can take it as 0.01, or you can take it as 0.001 or 0.00001 and so on. So continuously you can make the value of x smaller and smaller, and you will see that this continuation goes on forever. So this process of making x smaller and smaller can go indefinitely. You can continuously keep on making x delta x smaller and smaller, and in this case we say that delta x tends to 0. So what is the value of x? You can make delta x continuously, you can make delta x smaller and smaller. So delta x has no single value, so that means that delta x is unknown. Okay, so these three statements clearly indicate the meaning of delta x tends to 0. First of all, delta x may be
as close to 0 as you can make it as possible, and however it is not equal to 0. If it is close to 0, you can continuously assign it smaller and smaller values and keep on making it closer and closer to 0. This is the meaning of the expression delta x tends to 0. Now let us learn about another very important concept about the types of functions that we shall study here. हम लोग सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप के फंक्शंस के ऊपर यहाँ पे फोकस करेंगे. उन फंक्शंस को हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शंस बोलते हैं. उसमें क्या होता है, अगर आप x को चेंज करोगे, सपोज यू चेंज द वैल्यू ऑफ x बाय सम अमाउंट से डेल्टा x, तो वी नो दैट इफ यू चेंज x, y will also change and the corresponding change in the value of y will be delta y. Now if we apply the limit that delta x is approaching 0, what will happen to delta y? अगर हम डेल्टा x को छोटा करेंगे, what will happen to delta y? Does it become small? In our discussion, we will include only those functions where if delta x tends to 0, delta y also tends to 0. तो y is related to x. अगर आप डेल्टा x को कोई वैल्यू असाइन करते हो, जैसे मान लिया आपने डेल्टा x को वैल्यू असाइन किया 0.0001, तो आप चेंज इन वैल्यू ऑफ y निकालोगे, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि चेंज इन वैल्यू ऑफ y चेंज इन वैल्यू ऑफ x के बराबर आएगा. ऐसा कोई जरूरी नहीं है और ऐसा इन जनरल बिल्कुल जरूरी नहीं है. लेकिन हम लोग सिर्फ ऐसे फंक्शंस को अपने डिस्कशन में इंक्लूड करेंगे जहां पर यदि डेल्टा x 0 को अप्रोच कर रहा है तो डेल्टा y भी 0 को अप्रोच करेगा. ये एक स्पेशल क्लास ऑफ फंक्शंस की प्रॉपर्टी है जिनको हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शंस बोलते हैं. कंटिन्यूअस फंक्शंस के बारे में बहुत ज्यादा एलैबोरेटली आपको बताया जाएगा मैथमेटिक्स में, जहां पर आपको उसकी एक्चुअली जरूरत है. यहां पर हम लोग को सिर्फ कंटिन्यूअस फंक्शन की इतनी सी प्रॉपर्टी जानने की जरूरत है कि यदि इंडिपेंडेंट वेरिएबल 0 को अप्रोच करता है तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी 0 को अप्रोच करेगा. Now guys, let us come to the revision of the elements of differential calculus, and for that we begin with the function y equal to fx. तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है. मतलब अगर इसमें हम लोग x को चेंज करते हैं, सपोज डेल्टा x इज द चेंज इन x, तो डेल्टा x अगर 0 को अप्रोच करता है तो डेल्टा y भी 0 को अप्रोच करेगा. और अगर हम ग्राफिकली बात करें तो कंटिन्यूअस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो एक स्मूथ कंटिन्यूअस कर्व होता है. चलिए स्मूथ हो चाहे नहीं हो, लेकिन एक कंटिन्यूअस कर्व होता है. ठीक है. तो इन डिफरेंशियल कैलकुलस हम लोग क्या स्टडी करते हैं, हम लोग रिलेटिव चेंजेस स्टडी करते हैं. जैसे आपने x को चेंज किया तो y भी चेंज होगा. जैसे आपने x में एक चेंज इंट्रोड्यूस किया डेल्टा x, तो y में भी कुछ चेंज ऑटोमेटिकली आएगा बिकॉज x एंड y आर कनेक्टेड टू ईच अदर. सो चेंज इन y इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा y. सो दिस इज द चेंज इन y. डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, आप यहां पे देख लीजिए. डिफरेंशियल कैलकुलस में जो क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट है जिसको हमको निकालने की जरूरत पड़ती है वो क्या है, वो है डेल्टा y बाय डेल्टा x. तो डेल्टा y बाय डेल्टा x एक्चुअली है क्या, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा. आप जब वेलोसिटी डिफाइन करते हो तो आप बोलते हो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ऐसा बोलते हो v इक्वल टू डेल्टा x बाय डेल्टा t. एक्सेलरेशन आप बोलते हो डेल्टा v बाय डेल्टा t. और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो गया डेल्टा v बाय डेल्टा t. रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन हो गया डेल्टा x बाय डेल्टा t. दिस इज वेलोसिटी. आपको फोर्स याद होगा, आप क्या बोलते हो, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, दैट इज डेल्टा p बाय डेल्टा t. तो डेल्टा y बाय डेल्टा x आप देख रहे हो उसी तरह की क्वांटिटी. सो हम लोग डेल्टा y बाय डेल्टा x को क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. लेकिन डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग सिंपली डेल्टा y बाय डेल्टा x को नहीं निकालते हैं. हम लोग डेल्टा y बाय डेल्टा x को निकालने के लिए उसके ऊपर एक लिमिट इंपोज करते हैं. डिफरेंशियल कैलकुलस में जब डेल्टा y बाय डेल्टा x निकालते हैं तो एक लिमिटिंग कंडीशन इंपोज करते हैं. कौन सी लिमिटिंग कंडीशन, दैट डेल्टा x टेंड्स टू 0 है. तो हमको मालूम है यदि डेल्टा x टेंड्स टू 0 है तो डेल्टा y भी टेंड्स टू 0 होगा. तो ऐसे सिचुएशन में जब डेल्टा x टेंड्स टू 0 है तो कैलकुलस के लैंग्वेज में हम डेल्टा x को dx से रिप्लेस कर देते हैं. और क्योंकि हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, तो डेल्टा y भी 0 को अप्रोच करेगा. इसीलिए डेल्टा y को हम लोग
dy से रिप्लेस कर देंगे। सो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y बाय डेल्टा x क्या हो जाएगा, dy बाय dx हो जाएगा। सो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y बाय डेल्टा x विल बी dy बाय dx। इन जनरल डेल्टा y बाय डेल्टा x क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम लिमिट लगा देते हैं डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो इट बिकम्स इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में हम इसी एक्सप्रेशन को वर्कआउट करते हैं, इसी एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालते हैं। अलग अलग फंक्शंस के लिए हम लोग इसी एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालते हैं और हम बोलते हैं हम क्या निकाल रहे हैं, हम dy बाय dx निकाल रहे हैं। और dy बाय dx का एक स्पेशल नाम है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी इंट्रोड्यूस किया है। dy बाय dx का नाम होता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। थोड़ा भारी भरकम नाम है, बट डरने की जरूरत नहीं है। द थिंग्स आर वेरी सिंपल। एज वी प्रोग्रेस आपको समझ में आएगा कि ये चीजें उतनी डिफिकल्ट नहीं है जितनी आपको अभी एट प्रेजेंट लग रही है। इनफैक्ट बहुत ज्यादा आसान है, एंड दिस यू विल रियलाइज स्लोली एज वी प्रोसीड। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या निकालते हैं हम लोग, dy बाय dx निकालते हैं। अब dy बाय dx कैसे निकालते हैं, dy बाय dx निकालना थोड़ा सा मेहनत का काम है, बिकॉज उसके लिए आपके पास और भी मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन होना चाहिए जो आपके पास नहीं है। एट द सेम टाइम मैं आपको बता देता हूं कि आपको dy बाय dx को निकालने की जरूरत भी नहीं है। प्रिंसिपल से आपको dy बाय dx को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या करने का जरूरत पड़ेगा, दो चीजें जानने की जरूरत पड़ेगी। एक, यदि कोई स्टैंडर्ड फंक्शन है तो उसके dy बाय dx का वैल्यू कितना है, उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट का वैल्यू कितना है। और दूसरी बात जो आपको जाननी पड़ेगी वो ये कि dy बाय dx अगर हम निकाल रहे हैं तो क्या निकाल रहे हैं, आपको पता है ना, जब आप दो नंबर्स को ऐड करते हो 2 + 3, आप एडिशन करते हो तो आप क्या करते हो, आपको मालूम है आप क्या कर रहे हो। सब्ट्रैक्शन करते हो तो आपको पता है आप क्या कर रहे हो। मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो। तो जब आप dy बाय dx निकाल रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, प्रोसेस का नाम होता है डिफरेंशिएशन, याद कर लीजिए, ठीक है। जब आप dy बाय dx निकालते हो, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x निकालते हो, तो आप क्या करते हो, आप डिफरेंशिएट करते हो। आप क्या करते हो, डिफरेंशिएट करते हो। ओके, सो टू फाइंड आउट dy बाय dx इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। क्या करना, डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएशन करना, डिफरेंशिएट करना। ऑलराइट गाइस, so that is all for this video lecture, and we will meet shortly in another video lecture where we will study more details on differential calculus. Thank you.